నాడు విన్నపము సేయగా ఉడుగని పరాకుతో నుండి నెచ్చలి మీద ఉడుగని పరాకుతో నుండి నెచ్చలి మీద వడలి ఒరగినది నీ పాదంబులాన వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా. అడపంబు సతి వీడేమవతరింపు మటంచు అడరి కప్పురపు పలుకందియగా అడపంబు సతి వీడేమవతరింపు మటంచు అడరి కప్పురపు పలుకందియగా కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో పడతి ఎప్పుడు నీ పాదంబులాన వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా. ఆలవట్టము విసరు అతివలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఆలవట్టము విసరు అతివలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఏలాగవును వెంకటేశ నీవే పొడిట్టే ఏలాగవును వెంకటేశ నీవే పొడిట్టే పాలించకున్న నీ పాదంబులాన వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా. వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా. जय बोलो माता पद्मावती की, जय बोलो भगवान बालाजी की पटरानी की, जय बोलो भक्त मंडल की। मेरे भक्तजनों, वंदे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैः नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिः युक्तां सदा शक्तिभिः। माता जी के दोनों हाथों को देखिए, एक हाथ द्वारा हमें अभय प्रदान कर रही हैं और दूसरे हाथ से माता ये दिखा रही हैं कि मेरे चरणों में आप शरणागत बन जाइए। यदि आप मेरे चरणों को उसके प्रति समर्पित करें, स्वयं को मेरे चरणों में शरण में आ जाएं, तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। आपकी रक्षा करने का भार वह मेरा है, मैं वो जिम्मेदारी लेती हूँ। और श्रीमन नारायण जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अघटित घटना करता है, और मैं आपकी ओर से
भक्तजनों की ओर से मैं प्रार्थना करूंगी कि वे आपकी रक्षा करें, आपको बुद्धि दें, धन दें, बल दें। प्रिय भक्तजनों, माता जी के हाथ में कमल है और चेहरे पर मुस्कुराहट, सौभाग्य देने वाली हैं और एक हाथ से अभय प्रदान कर रही हैं और उनका सारा शरीर जो है तरह तरह के आभूषणों से, रत्नों से, हीरों से, मोतियों से सब विभूषित हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हरि हर ब्रह्मा इत्यादि सभी देव देवताओं से वे पूजी जाती हैं। वे भी, उनके लिए भी माता जी आदरणीय हैं। उनके बगल में पंकज, शंख, पद्म सभी हैं। सरसी जनयने सरोज हस्ते धवलतराम शुक गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम। प्रिय भक्तजनों, रथ एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आप जो रथ देख रहे हैं, रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते कहा गया है। इसी प्रकार रथ में आरूढ़ माता पद्मावती का दर्शन करने से हम जनन मरण के चक्र से विमुक्त हो जाते हैं। पुनः हमें इस दुनिया में आकर कष्ट और तरह तरह की यातनाएं भोगने की स्थिति नहीं होती। हम इससे बच जाते हैं, हमें मुक्ति मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रथोत्सव में भाग लेना या रथोत्सव का दर्शन करना, आप घर बैठे बैठे आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप वहीं रहकर माता, तब तुम्हारा ही भार है, आप जो भी देंगे मैं स्वीकृत करता हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपकी मर्जी है, आप जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను, ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను, ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను, ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను, ఆముకొని చల్లని చూపుల నీవు సారె నన్ను చూడగాను, ఉల్లము కరగి చొక్కి ఉందాన నేను. చల్లని చూపుల నీవు సారె నన్ను చూడగాను, ఉల్లము కరగి చొక్కి ఉందాన నేను. వెల్లవిరిగా నిట్టే వేడుకతో నవ్వగాను, వెల్లవిరిగా నిట్టే వేడుకతో నవ్వగాను, చెల్లుబడిగా సంతోషించుకుంటి నేను. వెల్లవిరిగా నిట్టే వేడుకతో నవ్వగాను, చెల్లుబడిగా సంతోషించుకుంటి నేను. ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను, ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను. ఏమని పొగడుదు నిన్నిపుడు నేను. చక్కెర వంటి మాటలు చనవిచ్చి ఆడగాను, అక్కర తోడుత ముదమందితి నేను. చక్కెర వంటి మాటలు చనవిచ్చి ఆడగాను, అక్కర తోడుత ముదమందితి నేను.
చొక్కుచు నన్ను గదిసి చుట్టరికము సేయగా చొక్కుచు నన్ను గదిసి చుట్టరికము సేయగా మిక్కిలి నీ గుణాలకు మెచ్చుకొంటి నేను చొక్కుచు నన్ను కదిసి చుట్టరికము సేయగా మిక్కిలి నీ గుణాలకు మెచ్చుకొంటి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిప్పుడు నేను ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిప్పుడు నేను మన్నన కాగిట నన్ను మరగించి కూడగాను నన్ను బాయకుందువని నమ్మితి నేను మన్నన కాగిట నన్ను మరగించి కూడగాను నన్ను బాయకుందువని నమ్మితి నేను ఇన్నిట నీవు వెంకటేశ నా ఇంట నుండగా ఇన్నిట నీవు వెంకటేశ నా ఇంట నుండగా మున్నుగా నీకు మొక్కితి నేను ఇన్నిట నీవు వెంకటేశ నా ఇంట నుండగా మున్నుగా నీకు మొక్కితి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిప్పుడు నేను ఆముకొని మేలుదాననైతి నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిప్పుడు నేను ఏమని పొగడుదు నిన్నిప్పుడు నేను లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैक दीपांकुराम। माता आज रथोत्सव में मोक्ष लक्ष्मी के रूप में आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रही है। यहाँ भक्तजन बहुत ही आनंद एवं उल्लास के साथ उन रस्सियों को यानी कि रथ के पहियों को बंधे हुए रस्सियों को खींचते हुए अब बहुत ही भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उन तिरुमाधवीदियों में परिक्रमा लगा रहे हैं। उपनिषदों में शरीर को रथ के रूप में, आत्मा को सारथी के रूप में, इंद्रियों को घोड़े के रूप में, उनको शासित करने वाले मन को लगामों के रूप में वर्णन किया। हमारे मन रूपी लगामों को भगवान को समर्पित करेंगे तो वह हमारे जीवन रथ को जरूर मुक्ति पथ में चलाएंगे। देखिए वही बताने के लिए आज मैया इस रथोत्सव पर रथ पर बैठकर भक्तजनों को दर्शन दे रही है। पद्मावती देवी वात्सल्य भरत दृष्टि से लोक को पुनीत कर देती है। इस विश्व भर यहाँ देखिए अशेष भक्त जनवाहिनी को हम देख सकते हैं। कितने भक्त यहाँ पर कोई भी बूढ़े या फिर यौवन इस तरह के कोई किसी प्रकार की सोच उन लोगों में नहीं है और बहुत ही भक्ति एवं श्रद्धा के साथ वे लोग मैया को देखने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माँ के साथ साथ वे लोग चल रहे हैं। सृष्टि के सकल चराचर जीव राशि के लिए आराध्या है माँ पद्मावती। इस माता का लालित्य ही शाश्वत चैतन्य है। देखिए आज मैया हमें अभय हस्त प्रदान करने वाली के रूप में वह दर्शन दे रही है। वह सौंदर्य लहरी है, सकल सृष्टि पर वात्सल्य भरित करुणामृत दृष्टि प्रसारित करती है और वह विश्व जननी है। उस शीतल माता की दृष्टि वैभव का वर्णन कितना भी करें वह कम ही है, क्योंकि भाषा की कमी पड़ जाती है, शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे सौंदर्य का वर्णन, इतनी शोभा का वर्णन जो है वह अतुल्य है।
सर्वमंगलकारिणी, कीर्ति प्रदायिनी, मोक्षदायिनी के रूप में पद्मावती देवी पूजाएं स्वीकार करती हैं। उन्नत मनोभूमिकाओं, आनंदमय उन्नत लोकों से सदा शुभ प्रदान करने की प्रार्थना पद्मावती देवी से करने पर अपने करुणा कटाक्ष वीक्षणों से वह आशीर्वाद देती है। सर्व प्राणियों में चेतना रूप से दीप्तिमान हो देवी का रूप प्रकाशित होता है। यानी कि हमारे मन में अगर उस दिव्य मूर्ति को बसा लेते हैं तो कोई भी किसी प्रकार का कष्ट या क्लेश हम तक नहीं पहुंचता। देवी ही प्रकाश का प्रतीक है। देखिए उस मूर्ति को, उस सुंदर मूर्ति को माता के दर्शन करने से जब हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी प्रकार से ही माता को देखते ही रह जाएं। इतनी सुंदर मूर्ति है मैया की। और यहाँ पर देखिए बूढ़े हो या बूढ़ियाँ हो, सब लोग माता के रथोत्सव में भाग ले रहे हैं।
लक्ष्मी श्रीमन्मन्द कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्ये लोके कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। श्री पद्मावती माता सर्वलोकेश्वरी है, वह त्रिभुवनेश्वरी है, सर्वनादमयी, सच्चिदानंदमयी, परब्रह्ममयी, सिद्धिदात्री, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करके सद्गुण प्रदान करने वाली है माता पद्मावती। इसीलिए उनको सर्वार्थ साधकी के रूप में बताया जाता है। अथल अप्रमेय निराकार तत्व अनोखे हैं, अलौकिक भावना बहुत ही तुल्य है। भौतिक जीवन में मानवों के लिए आवश्यक सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री है। इसी प्रकार से माता को बहुत ही सुंदर रूप से अर्चित किया जाता है, क्योंकि वह हमें सिद्धियों को प्राप्त करवाती है। अमरत्व करने आशीष देती है। वह हमें अमरत्व को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा हमें आशीर्वाद देती रहती है। भक्तों के सकलार्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। महामहिमान्विता के रूप में आज वह रथ में विराजमान होकर भक्तजनों को दर्शन दे रही है। सर्व मंगलों का निलय पद्मावती देवी की सन्निधि में अमंगलों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लक्ष्मी स्वरूपिणी माता अभीष्ट भोग भाग्य मंगलदायी जीवन प्रदान करती है। आज उसी लक्ष्मी माता को अभय हस्त प्रदान करते हुए देखो कितनी ही सुंदर से वह हमें दर्शन दे रही है। और हम लोग इस उत्सव को घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से इस सुंदर दृश्य का, सुंदर उत्सव को हम घर बैठे ही देख रहे हैं। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। शांत पावन तेजो रूपिणी पद्मावती देवी चराचर प्रपंच को शांति सौभाग्य प्रदान करने वाली कल्पवल्ली है। देखिए आज उस माता को कई प्रकार के मोतियों से और कई प्रकार के आभरणों से उनको सजाया गया है। देव देवताओं के स्तोत्रों से कीर्तित माता अब गंगोंड्र मंडप में जा रही है। यहाँ माता थोड़े देर के लिए विश्राम करती है और वहाँ उनको भोग चढ़ाया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ अशेष भक्तजन वाहिनी यहाँ कितने ही भक्ति के साथ माता के साथ साथ चल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है वे भक्ति तल्लीन में गोविंद नाम स्मरण करते हुए, माता के नाम जप करते हुए वे लोग अपने सारे कष्टों को और सारे क्लेशों को दूर करने के लिए वे मिन्नतें कर रहे हैं बारंबार माता से। और अर्चक गण भी यहाँ पर वेद और वे लोग मंत्रोच्चारण के साथ माता के साथ बैठे हुए हैं। और वे यहाँ पर हम अभी देख रहे थे चामर, ये एक प्रकार का फंके जैसा है और यह भगवान के वाहन सेवाओं में या फिर माता के उत्सव के सेवाओं में ही इसको लिया जाता है। और यहाँ देखिए कई प्रकार के फूलों से रथ को सजाया गया है और माता इसमें अभय हस्त प्रदान करते हुए बहुत ही सुंदर रूप से बैठी हुई है। यहाँ इनकी भक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अनिर्वचनीय भक्ति है, जो हर एक व्यक्ति उस रस्सी को छूना चाहता है। हर एक व्यक्ति माता को वो चाहता है कि माता के इस वाहन सेवा में वह भाग ले।
और माता का मनसा वाचा कर्मणा सेवन करें। निर्मल मन में प्रतिनित्य वास करने की प्रार्थना करें। सर्वजन हितार्थ प्रार्थना करनी चाहिए हमें, और हमेशा हमें माता के नाम स्मरण, कई प्रकार के नामों से माता को अर्चित किया जाता है। श्रीयै नमः कहा जाता है, दारिद्र्य नाशिनी कहा जाता है। तो कई प्रकार के नाम स्मरण हम करते हैं, तो हमें उसी प्रकार के नाम स्मरण हमेशा करना चाहिए जिससे हम कृतार्थ हो जाएंगे। माता पद्मावती देवी सिद्धिदात्री शाश्वत नंदा का अनुग्रह प्रदान करती है। मानव जीवन में सर्वशक्ति का केंद्र जगत जननी का मंदिर ही है। विघ्नों का सामना करने की शक्ति, लोकहित के शुभ कार्यों में विजय प्रदान करने की प्रार्थना उस माता से ही हमें, अगर हम स्वच्छ मन से पूछते हैं तो जरूर माता वह सब हमें देती है, हम जब उनके पास अपना स्वच्छ मन रखते हैं। इससे वह सहृदय स्वरूपिणी होकर हमें आशीर्वाद देती है। पद्मावती प्रसन्नता की, उल्लास की, विनोद की देवी है। वह जहाँ रहेगी वहाँ का जो प्रांत, वहाँ का जो स्थान जो है वह आह्लादमय वातावरण हो जाता है, क्योंकि है ही लक्ष्मी माता तो ऐश्वर्य रूपिणी है, तो जरूर वहाँ का पूरा वातावरण जो है वह बहुत ही ऐश्वर्य को प्रदान करती है। सौंदर्य, स्वच्छता एवं कलात्मकता का और एक नाम है पद्मावती का। पद्मावती सौंदर्य की देवी है। वह जहाँ रहेगी वहाँ स्वच्छता, प्रसन्नता, सुव्यवस्था, श्रमनिष्ठा एवं मितव्ययिता का वातावरण बना रहेगा। देखिए, इस रथोत्सव में जैसे जैसे माता का जो रथ निकलता है वहाँ पर नमक एवं काली मिर्च को माता पर डालते हैं। श्री पद्मावती प्राणनाथाय। प्रिय भक्तजनों, रथ आप जो देख रहे हैं 4-5 प्रकार के रथ होते हैं। देह रथ, हमारा शरीर भी एक रथ है, आत्मा रथिक है उसमें रहना। और छंदो रथ एक है। छंदस यानी ये जो पद्य हो या श्लोक गीत, ये जो है ये भी रथ ही हैं। देह रथ, छंदो रथ और वेद रथ, ये सभी इस तरह के रथों के बारे में कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक भाषा में पद्य हो या श्लोक एक छंद में लिखे जाते हैं। ये संस्कृत में भी अनुष्टुप छंद हैं, गायत्री छंद हैं, अलग अलग छंद हैं। माता जी को या भगवान को छंदों के रथ में बैठकर यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है उनको। जैसे ये रथ तो ठीक है, इस रथ में आरूढ़ हैं, लेकिन वे छंदों द्वारा, गीतों द्वारा, श्लोकों द्वारा, पद्यों द्वारा हमारे पास आ जाते हैं। देवता जो होते हैं वे छंदो प्रिय हैं। वे छंदों द्वारा ही हमारे पास आते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय भक्तजनों, फूल क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि वे माला बनकर भगवान के चरणों में या गले में या उनके भुजाओं पर वे अलंकृत करें। आपने एक कविता सुनी हुई, फूल की चाह, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता थी, फूल की चाह। फूल चाहता है कि वह भगवान के या देशभक्तों के चरणों के तले दब जाएं। राजाओं पर या राजाओं के शवों पर या प्रेमी द्वारा उसके प्रिय को या समर्पित करना या समर्पित हो जाने में उनको आनंद नहीं मिलता। सुरबाला के उसमें भी वे उनका अलंकार बनना नहीं चाहता है फूल बस यही चाहता है कि मुझे तोड़ देना वनमाली,
उस पद में जहाँ वे फेंक, जिस पद पर देशभक्त अपनी जान हथेली में रखते हुए देश सेवा में जो अपने प्राण को कुर्बान करने निकलते हैं, उनके पैरों तले हम दब जाएं, ऐसे कुछ फूल चाहते हैं। और फूलों की सार्थकता समर्पित हो जाने में ही है। मतलब बहुत फूल ऐसे हैं वे भगवान के चरणों में, भगवान के गले में या उनके सिर में, यहाँ जो फूल हैं इनका भाग्य विशेष ये है कि ये रथ पर हैं, कुछ यहाँ माता जी के चरणों के निकट हैं। तो मेरा मतलब यह है कि ये फूल जिनसे हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये चाहते हैं कि वे इस तरह एक अच्छे कार्य में इनका सदुपयोग किया जाए। लेकिन भगवान हमसे जो चाहते हैं, ये फूल तो ठीक है, गोदा देवी ने भी कहा है, तू मलर तूवि तोड़िदु वाइनाल पाड़ी मनत्तिनाल सिंधिका। ताज़ा ताज़ा फूल लीजिए, मुंह में नाम लीजिए भगवान का, और मन में उनका रूप आप उसको स्थायी रूप से रख लीजिए। लेकिन साधारण हम देखते हैं कि पहले मन में भावना लेते हैं, मुंह में नाम आता है, बाद में फूल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए छंदो रथ में विराजमान होकर, ब्रह्म रथ विराजमान होकर माता जी आगे बढ़ रही हैं, और माता जी चाहती हैं कि वे भक्तों की संख्या और बढ़ें, भक्ति भावना और फैल जाएं। सुन ले मना भक्ति बिना, सुन ले मना भक्ति बिना, जीवन सूना सूना, सुन ले मना। अंधियारे में तू दे उजियारा, अंधियारे में तू दे उजियारा, जीवन अर्पण है तुझ पे सारा, जीवन अर्पण है तुझ पे सारा, है निराशा में तू है आशा, है निराशा में तू है आशा, तेरा दर्शन ही एक अभिलाषा, सुन ले मना भक्ति बिना, सुन ले मना भक्ति बिना, जीवन सूना सूना, सुन ले मना। हाथ जोड़ के मांगू तुझसे माता, हाथ जोड़ के मांगू तुझसे, सर न झुकाऊं मैं आगे किसी के, तुझको नमन करूं मेरी माता, तुझको नमन करूं पद्मावती जी मन। इस प्रकार पद्मावती के प्रति भक्ति भावना जो इसमें दिखाई गई है, बिना भक्ति के जीवन ही नहीं है। भक्ति मीन्स जोड़ने वाली भावना है, आराध्य के साथ भक्त को जोड़ने वाली भावना है भक्ति। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास के बाद मार्गशीर अभी शुरू हुआ है। भगवान विष्णु के लिए मार्गशीर मास अत्यंत प्रिय है, मासानाम मार्गशीर्षो हम कहा है। और ये कार्तिक ब्रह्मोत्सव, ये जो इसमें शिव और केशव, दामोदर मतलब शिव दोनों के लिए प्रिय हैं। शिव और केशव दोनों, जैसा कि कहा गया है, अभिन्न है। पायात् कुमार जनकाख्य उमा विलासः, शंख प्रभश्च निधनीश गवीशयानः, गंगा च पन्नगधरश्च पिनाकसक्तः, आद्यक्षरेण सहितो रहितो भवन्तम्। इस श्लोक में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनमें पहला अक्षर रहने से शिव जी के अर्थ में है। कुमार जनकाख्या, कुमार स्वामी के पिता, और कु अक्षर निकालने से मार जनक, मन्मथ के पिता विष्णु है। इस प्रकार जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों के आगे अक्षर के रहने से शिव जी के अर्थ में,
और अक्षर निकालने से विष्णु के अर्थ में आते हैं। शिव और केशव दोनों यहाँ आप जो सुन रहे हैं भक्ति चैनल द्वारा आपको वे शुभ और लाभ प्रदान करें। अब देखिए रथ आगे बढ़ रहा है, अंतिम चरण पर पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं रथ में माता जो बैठी हैं उनका दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, और वे जग की जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पे परिहर वारी विकार। यहाँ संत भी यहाँ पधारे हुए हैं दूर दूर प्रांतों से, उनका भी दर्शन होता है। एक तो भगवान की और इनकी दोनों की दर्शन होता है। देखिए यहाँ आज इतना यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है, पवित्र वातावरण है और माहौल भी बहुत सुंदर है। और रथ के पहिए आगे बढ़ रहे हैं और भक्त बड़ी भक्ति भावना से भाव विभोर होकर खींच रहे हैं। और देखिए यहाँ अणु अणु में, यहाँ पग पग पर भक्त भगवान का नाम ले रहे हैं। और एक विशेष बात यह है कि जो भी यहाँ एक बार आते हैं वे बार बार भी आने की इच्छा रखते हैं। श्रीशैले कलिकाले श्रीशैले केलिकाले मुनि समुपगमे या भयात् प्राक् प्रयाता तस्यैवोपत्सकायां तदनुशुकपुरे पद्मकासार मध्ये प्रादुर्भूतारविन्दे विकचदलचये पच्युरुग्रैस्तपोभिः सेयं श्रीवेङ्कटाद्रि प्रभुवर महिषी भातु पद्मावती श्रीः। రెక్కల కొండవలే మీరిన బ్రహ్మాండము వలె వెక్కసమైన తేరుపై వెలసీనీ దేవుడు, వెక్కసమైన తేరుపై వెలసీనీ దేవుడు. బిరబిర తిరిగేటి పెనుబండి కండ్లతో గురుతైన పడగెల గుంపులతో తరితో ధరణి గ్రక్కదలగదలెను తేరు, తరితో ధరణి గ్రక్కదలగదలెను తేరు. మెరసి వీధి వీధులా మేటి అయిన దేవుడు, రెక్కల కొండవలే మీరిన బ్రహ్మాండము వలె వెక్కసమైన తేరుపై వెలసీనీ దేవుడు, వెక్కసమైన తేరుపై వెలసీనీ దేవుడు. ధగధగమను ఆయుధపు మెరుగులతోడా జిగిమించు బగ్గముల చేరులతో, ధగధగమను ఆయుధపు మెరుగులతోడా జిగిమించు బగ్గముల చేరులతో, పగటురా కాసులపై బారీనది తేరు, నిగిడినలు దిక్కుల నీటు చూపి దేవుడు, రెక్కల కొండవలే మీరిన బ్రహ్మాండము వలె వెక్కసమైన తేరుపై వెలసీనీ దేవుడు, వెక్కసమైన తేరుపై వెలసీనీ దేవుడు. గణగణమని ఎడిగంటల రవము తోడా ప్రణు
ప్రణుతినల మేల్మంగ పంతాల తోడా ప్రణుతినల మేల్మంగ పంతాల తోడా రణములు గెలిచి రణములు గెలిచి మరలెనదే తెరుతేరు గణుతికెక్కెను శ్రీ వెంకటగిరి దేవుడు రెక్కల కొండవలే మీరిన బ్రహ్మాండము వలె వెక్కసమైన తేరుపై వెలసి నీ దేవుడు వెక్కసమైన తేరుపై వెలసి నీ దేవుడు प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकाम। देखिए माता मंदिर के नज़दीक पास वह आ गई है और यहाँ इस रथोत्सव का एक मुख्य विषय है कि कठोपनिषद में हमें मनुष्य के इंद्रियों की तुलना घोड़ों से की गई है। इसलिए माता उस रथ पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को यही संदेश देती है कि हमें हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारा जीवन यापन करना चाहिए। माता दुष्ट जनों का संहार एवं शिष्ट जनों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करती है। वह तो सर्वलोकेश्वरी कहलाने वाली माता श्री पद्मावती देवी आज रथ यात्रा में भक्तजन बहुत ही आनंद एवं हर्षोल्लास के साथ माता के आगे आगे आ रहे हैं। देखिए कली दोषों का हरण करती है माता और शरणागत के जो पापों को वह नष्ट करती है, सभी कामनाओं को भी वह पूर्ण करती है। अहम भक्त पराधीनो कहा जाता है। वैसे तो भगवान कभी भी किसी व्यक्ति से विमुख नहीं होते, पर अपने भक्त के प्रति वे सदैव अतिशय दयालु रहते हैं। कई प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर अब दर्शन नहीं कर सकते। एक प्रकार से इस तरह के उत्सवों के माध्यम से माता सबके आगे आती है, क्योंकि इसीलिए उनको वात्सल्यमयी कहा गया है, लोकहितकारिणी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा भक्तों के बारे में सोचने वाली है। इसीलिए वह भक्तों के आगे आती है जो आकर उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इस रथोत्सव में भी काफ़ी सारे भक्तजन इस प्रकार से माता के दर्शन वे लोग कर सकते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही भूखे हैं, वे और कुछ भी हमसे नहीं चाहते। वे सिर्फ जो भी है यानी कि मन की हमारी स्वच्छता उनको चाहिए और कुछ उनको नहीं चाहिए। उन्हें केवल निष्काम प्रेम चाहिए, बदले में सब कुछ वे हमें दे देते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम में जो मिठास है वह वर्णनातीत है तथा उसमें अद्वितीय सरसता है। इसे पाने के लिए भक्त में समर्पण की भावना होना चाहिए, असाधारण लालसा और अटूट आस्था की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेम है जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं, अनवरत बढ़ती ही रहती है। इस प्रकार की जो भक्ति कभी बुझती नहीं है, इसीलिए उसको बनाए रखना है और वह अनवरत बढ़ती हुई प्रेम को, भक्ति को हमें माता को दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि माता जो है वह सर्वलोकेश्वरी है और सदा प्रेम की कमी का ही वह अनुभव करती है और अधिकाधिक भक्ति प्रेम पाने की आकांक्षा रखती है। देखिए यहाँ
अंतिम पड़ाव पर आकर रुके हैं हम भक्तजन। बहुत ही बारिश हो रही है, फिर भी कोई भी वहाँ से हिल नहीं रहा है। उनकी भक्ति को हम देख सकते हैं, उस तल्लीनता को हम देख सकते हैं, किस प्रकार से वे लोग माता से जुड़े हैं। भक्त का अपने आराध्य के प्रति प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक होता है। भक्त की अलौकिक निष्ठा ही उसे यह प्रेम दिखलाती है, जिसमें मोक्ष मुक्ति का कोई स्थान नहीं होता। हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम उनके हैं और वे हमारे हैं। माता वाहन मंडप के पास पहुंच गई है और यहाँ माता की इस रथोत्सव के अंतिम आरती को दिया जाता है और कुंभ आरती को भी हम देख सकते हैं, जो कार्यक्रम को इस रथोत्सव को संपन्न करने वाला अंतिम आरती के रूप में बताया जाता है। माता अभी वाद्य यंत्रों और कई प्रकार के कलाकारों भक्तों के साथ होते हुए वाहन मंडप पर पहुंची है। चली पंदिर
వనితమూవి పండు వాయనమీయగబోలు ఇనసి శ్రీ వెంకటేశు మూవి చేకొని వనితమూవి పండు వాయనమీయగబోలు ఇనసి శ్రీ వెంకటేశు మూవి చేకొని తనివో కచప్పరాని తపము సేయగబోలు ఎనసి ఇద్దరు కూడి ఏకమైరి ఇదివో తనివో కచప్పరాని తపము సేయగబోలు ఎనసి ఇద్దరు కూడి ఏకమైరి ఇదివో ఏకమైరి ఇదివో విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణ సమాశ్రితాం దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవవారిణీం ఓం శ్రీం హ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః రక్షత్రం దేవదేవేసి దేవదేవస్య వల్లభే दारिद्र्यां त्राहि मां लक्ष्मी कृपां कुरु ममोपरि। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी तक देखा है रथ पर आरूढ़ होकर रथ यात्रा पर तिरुविधियों में निकलने वाली माता पद्मावती को। पुष्पों में कमल पुष्प का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। या देखिए, हाथ में भी कमल है और जिस पर विराजमान है वो भी कमल है। मुख की तुलना भी कमल से करते हैं और यहाँ भी रथ के ऊपर कमल है। कमल की क्या विशेषता है? वह कीचड़ में रहकर भी यानी अपने चारों ओर जो वातावरण है उससे संघर्ष करते हुए वह बढ़ता है। कीचड़ में रहकर भी वह उस पर कीचड़ नहीं लगता। मेरा मतलब यह है कि हमें भी इस संसार में अनेक विपत्तियों से घिरे रहते हैं, अनेक उलझनों में उलझ जाते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के वातावरण रहते हैं। फिर भी हमें जीवन में उन्नति यदि प्राप्त करनी हो तो हमें प्रयास करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते न च कार्याणि मनोरथैः। केवल मन में संकल्प लेने से, इच्छा करने से हमारी इच्छाएं, संकल्प पूरे नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह भी यदि गुफा में अगर बैठा रहता है, लेटा रहता है, तो उस जानवर सभी उनके पास थोड़े ही आते हैं, उसको भी शिकार करना पड़ता है। उसी प्रकार हमें भी भले ही हम दैनिक जीवन में हम इधर उधर भटकने जाएं, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए इस प्रकार की यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि वैसे ही हर मंदिर में भगवान विद्यमान है, लेकिन तिरुमला या तिरुपति या तिरुचानूर की विशेषता यह है कि यहाँ की जो मूर्ति है स्वयंभू है और युग युगों से अनेक भक्तजनों ने इसको देखा है। उनके नेत्रों से जो भक्ति भावना यहाँ आई है और उस पवित्र मूर्ति पर वो सभी भक्ति भावना छाई रहती है। जब हम देखते हैं तो हम भी भाव विभोर हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। अदृश्य रूप में यहाँ जो तरंग रहते हैं उनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। देखिए, यहाँ अर्चक स्वामी भी आधा तन उनका खुला हुआ है और आधा देखिए कपड़े भी पहने हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ जो पवित्र वातावरण है या भगवान के नेत्रों से जो शक्ति चारों ओर फैलती है वो सीधा हृदय पर लग जाए। और दासता का भी ये प्रतीक है। जब कमर में हम ये जो वस्त्र बांधते हैं, इसका मतलब है मैं आपका दास हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए तो ये वर्जित है। महिलाएं दंडवत भी नहीं करती हैं, वे झुककर प्रणाम करती हैं। लेकिन पुरुष होते हैं भगवान के या माता के समक्ष नीचे दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम कहते हैं।
और इस प्रकार वे अपने दासत्व को, अपनी शरणागति को तो सिर्फ कहते हैं मैं तुम्हारा दास हूँ, सब कुछ मैंने आपके चरणों में अर्पित किया है, यह बताने के लिए इस तरह वे परिधान वस्त्र पहनते हैं। फिर भक्तजनों, अब देखिए फिर अगले वर्ष ही रथ देखने का अवसर मिलेगा। माता आपको आशीर्वाद दें और अवश्य आपको अगली बार यहाँ स्वयं आकर रथ यात्रा में भाग लेने का सुअवसर आपको प्राप्त हो जाएं। SPBC चैनल चाहती है कि आप घर बैठे बैठे माता का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम श्री मात्रे नमः याद रखिए। आज से आप इस पर पूर्ण विश्वास के साथ, भगवान जैसा कि अभी मेरे पहले मैडम ने जो कहा है कि भगवान सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं और माता भी चाहती है कि आप उनके लिए समर्पित हो जाए और मन से, मन की गहराई से आप करें। देखिए, आंखें तालाब नहीं हैं फिर भी भर जाती हैं, ओंठ कपड़े नहीं फिर भी सिल जाते हैं, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग खा जाती है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। तो इंसान यहाँ रहकर फिर अपना जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए। అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి, అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి, చలములేటికి ఇక సమ్మతించవే, అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి, చలములేటికి ఇక సమ్మతించవే. విడియము చేతికిచ్చి వివుడు వేడుక పడి ఒడివట్టి పెనగగా వద్దనకువే, విడియము చేతికిచ్చి వివుడు వేడుక పడి ఒడివట్టి పెనగగా వద్దనకువే, ఉడివోని వేడుకతో ఉంగరము చేతికిచ్చి, ఉడివోని వేడుకతో ఉంగరము చేతికిచ్చి, ఎడయక వేడుకొనగా ఈయకొనవే, ఎడయక వేడుకొనగా ఈయకొనవే, అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి, చలములేటికి ఇక సమ్మతించవే. చిప్పిలు వలపు తోడా చెక్కులు నొక్కుచు మోవి కప్పురమందియగాను కాదనకువే, చిప్పిలు వలపు తోడా చెక్కులు నొక్కుచు మోవి కప్పురమందియగాను కాదనకువే,
కొప్పుదు విబుజ్జగించి కొసరి మాటలాడి కొప్పుదు విబుజ్జగించి కొసరి మాటలాడి అప్పనము నవ్వగాను అట్టే కాని మనవే అప్పనము నవ్వగాను అట్టే కాని మనవే అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి చలములేటికి ఇక సమ్మతించవే తీర్చగించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నిన్ను గూడి మచ్చిక కాగలించగాను మారాడకువే తీర్చగించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నిన్ను గూడి మచ్చిక కాగలించగాను మారాడకువే పచ్చడము మీద గప్పి పట్టపు దేవుల చేసి పచ్చడము మీద గప్పి పట్టపు దేవుల చేసి నిచ్చలాన నేలుకొనే నీవు గైకొనవే నిచ్చలాన నేలుకొనే నీవు గైకొనవే అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి చలములేటికి ఇక సమ్మతించవే అలమేలు మంగవు నీవన్నిట నేరు పరివి చలములేటికి ఇక ಎತ್ತರೆ ಆರ ತುಲಿಮೆಕು ಇಂತುಲಾಲ ಎತ್ತರೆ ಆರ ತುಲಿಮೆಕು ಇಂತುಲಾಲ ಹತ್ತೆನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶು ಕಲಮೇಲು ಮಂಗ ಎತ್ತರೆ ಆರ ತುಲಿಮೆಕು ಇಂತುಲಾಲ ಹತ್ತೆನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶು ಕಲಮೇಲು ಮಂಗ ಎತ್ತರೆ ಆರ ತುಲಿಮೆಕು ಇಂತುಲಾಲ ಹರಿವು ರಮ್ಮುಪೈ ಸೊಮ್ಮು ಅರುತಗಟ್ಟಿನ ತಾಳಿ ಸರಿಲೇನಿ దేవుని సంసార ఫలము హరిమురమ్ముపై సొమ్ము అరుతగట్టిన తాళి సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు మెరుగుబోడి అలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులీమెకు ఇంతులాల హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులీమెకు ఇంతులాల శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ
शुभप्रद श्रीपद्मावती आनन्दकारिणि श्रीपद्मावती आश्रितवत्सल श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती ऐ खगवाहिनी श्रीपद्मावती अम्बुजलोचनि श्रीपद्मावती अनुदिनमर्चित श्रीपद्मावती अलङ्कारप्रिय श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती कमललोचनि श्रीपद्मावती कल्मषमोचनि श्रीपद्मावती कामितदायिनि श्रीपद्मावती कारणकारिणि श्रीपद्मावती जय जय लक्ष्मी श्रीपद्मावती जय विजयलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय वरलक्ष्मी श्रीपद्मावती जय महालक्ष्मी श्रीपद्मावती Ah!
பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டதுண்டாள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னை ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் வளவார்வினில் பாடுகின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவாதுவது வளத்துறையும் சுடராடியும் பல்லாண்டு படைபோர் பக்கம் விளங்கு அப்பாஞ்சதன்னையமும் பல்லாண்டு நந்திர உடையோம் நாளிலத்தில உயிர்க்கு பொன்னாந்துறையில் பிடித்தார் பிடித்தாரை பத்தே பாடி திருமணிசை வாழி திருமல்லி வடநாடு வாழி சுழிபுரை தண்ணீர் பொன்னி தன்னரங்கன் பழிவரத்தவான் திருநாடு வாழி திருப்பொருளல் வாழி திருநாட்டு தென்குருவோர் வாழி திருநாட்டு சிட்டத்தவர் வாழி வாழி ஜலகோபரிட்ட தமிழ் வாழிசை
மங்கையருள்வாழி வன்குறையருள்வாழி சங்கையருள்வாழி சீர்வாழி பொங்கு புனல் மண்ணி வாழி பலகாலம் தமிழ் பாவிதை வாழியவார் தென்குருவை வாழியதார் தென்குறையல் மாநகரம் வாழியதார் தக்கால் மரவன் தலஞ்சோள் விரும்போதோர் முக்கோள் பிடித்தமுனி மொழியாய் கடக்கும் பெரும்புகழான் பஞ்சபக்திரம் மொழியை கடத்தன் நங்கூரத்தாழ்வான் பழியாய் கடத்துமி ராமானுஜன் புகழ்வாள் எல்லா வழியாய் கடத்தே நெஞ்சத்திரந்தரமாயத்துக்கும் பஞ்ச குறும்பின் வகையறுத்தோம் ஆயவாதியர்தா மஞ்ச பிறந்தவன் பஞ்சத்துறவன் சரணாம்பயவந்தலை கணிந்த ஒழிதரும் உலகமையாம் பூரம்பை வைகவாரன் மழிசையர்கான் பட்டர் பிரான் மங்கவேந்தன் கோழியர்கான் தந்தொரு துகள் பாரன் சூரியனோடி வீதி வாழியன் வாழ்த்துவாரம் தென்னைக்கு மலர்ந்த श्रीमन्त्री रङ्गत्रियमणभद्रनुदिनं संवर्धया श्रीमन्त्री रङ्गत्रियमणभद्रनुदिनं संवर्धया नमः श्रीशैलनाथार्य बुन्दिनगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्त कैंकर्यधारिणे श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणर्णवम् यतेन्द्र प्रभणं वन्दे रम्यजामादरं मुने वाळिदिरुवाय मुळिप्पिळ्ळै மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறந்திருவாய் மொழிப்பொருளை மாநிலத்தார் சேரும்படி செய்யலாமரை தாரிணை வாழிய திருநாவி வாழிய வாழிய சுந்தர திருத்தோழினை வாழிய ஐயமேந்திய முக்கோர்ணம் கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாழிய உயிராரமணவாளி புந்தி வாழி வாழி வாழிய அடியார்கள் வாழ கணர் வாழ கடகோவன் தந்தமிழ் நூல் வாழ கடல் தமிழ்நுலகம் வாழ மணவாள மாமுனியே இன்னவரை நோற்றான் श्री पद्मावती विद्यालक्ष्मी श्री पद्मावती संतानलक्ष्मी श्री पद्मावती धैर्यलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती श्रीकरि शुभकरि श्री पद्मावती श्री चक्रवासिनी श्री पद्मावती श्रीनिवास प्रिय श्री पद्मावती श्री शुभलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी तद्विश्वा परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरादरम् तद्विप्रासो विपण्यमो जागृवागं सत्समिन्धते विष्णाय परमं पदं पर्याप्यानन्तरायाग सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याच्यै सर्वस्य चित्यै सर्वमेव देवाप्नोति सर्वं जयति देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमी
श्रीमद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिके आकारत्रय संपन्ने अरविंद निवासिने अशेष जगदीशित्री श्री वेंकटवल्लभे ऋग्वेद प्रिये ऋग्वेदमवधारय आयङ्गो कृष्णीरक्कमेतसादन्मातरम् पुरः पितरम् च प्रयन् स्वाहा अन्तश्चारतिरोचनास्य प्राणादापानति व्याख्यन्महिषो दिवम् त्रिंशद्धाम विराजति वाग्मातङ्गाया धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः ऋतम् च सत्यम् चाभिर्धात्तपसोऽध्याजायत ततो रात्र्याजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो आजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ दाताया च पूर्वमाकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा संसमित्योपसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर सङ्गच्छध्वं संवादध्वं संभोमनांसि जानताम् देवाभागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासाते समानो मन्त्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रामभिमन्त्रयेव समानेनावो हविषा जुहोमि समानी वाकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासाति तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपादये देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जी गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति विष्णुः परमः देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे श्रीमदखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिके मानातीत प्रतिभवे समस्त जननी चैतन्य स्तन्यदायिनी श्री पद्मावती देवी शुक्ल यजुर्वेद प्रिये शुक्ल यजुर्वेदमवधारय ईशावास्यामिदग्ने सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगात् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथामाग्रधकस्य विधनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजेविषे सदग्रसमाः एवं त्वयेनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्याणामते लोका अन्तेन तमसावृताः आगस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मनो जनाः अनेजते कम्मनसो जवेयोनेन देवो आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावादोऽन्यानत्येदिष्ठत्तस्मिन् नभो मातरिष्वा दधाति तदे दोरे तद्वन्दिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाक्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजोगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहकृशोकाय तत्त्वमानुपश्यतः सुपर्यागात् शुक्रवाकायमो व्रणमश्नविरग्रशुद्धमपापविद्धम् कविर्माणेशे परिभो स्वयंभोर्षादत्यथार्थान्यदथाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः
अन्धन्दमप्रवेशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यवो विद्यायाग्रताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया ते शुश्रुमन्दिराणायेणस्तद्वे च चक्षिरे विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयग्रसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते अन्धन्दमप्रवेशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उशम्भोत्यग्ररताः अन्यदेवाः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमन्दिराणायेणस्तद्वे च चक्षिरे सम्भोतिञ्च विनाशञ्चयस्तद्वेदो भयग्रसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यामेहितं मुखम् तत्त्वं पूषण्णपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषण्यकर्षेयमसौर्यप्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समोहतेजो यत्ते रूपं कल्याणदमन्दत्ते पश्यामि यो सा वसो पुरुष सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमतेदं भस्मान्तग्रशनेरम् ॐ क्रतोस्मरकृतग्रस्मर अग्नेनया सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मद्योराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम तान् होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एताग उदजतामिति तेह ब्राह्मणा न ददृशु रथाय यवल्क्यस्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेत सोम्योदजसामश्रवा इति ताहोदाचकार देह ब्राह्मण सुकृत कथन्नो ब्रह्मेष्ठो ब्रवेदेत्यथः जनकस्य देहस्य होताश्वलो बभूव हेनं पप्रच्छत्वन्नो खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मेष्ठोऽसि इति सहोवाच नमो वयं ब्रह्मेष्ठाय कुर्मो गोकामायेव वयग्स्म इति तत एव पृष्टं तद्रे होताश्वलः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम ओम देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायिके भगवन्नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुणविभवैश्वर्य शीलाद्यनवधिकार्ष्य असङ्ख्येय कल्याण गुणगणे पद्मला पद्मालये पद्मावती देवी कृष्णयजुर्वेद प्रिये कृष्णयजुर्वेदमवधारय भद्र उदरमन्तरिक्षं वायुज्यावा पृथिवी आण्डोग्रभासे भस्वो मोरेतो यद्युञ्जभ्यते तद्विज्योतिधे यद्विधोनुते तत्स्वनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागे वास्य वागहर्वाश्वस्य जायमानस्य महिमा पुरस्तात् जायते रात्रिरेणं महिमा पश्चादनुजायत एतौ वै महिमानावश्वमभिरस्तं बभूवदर्हयो देवान् नवहदर्वासुरा वाजी गन्धर्वानश्वो मनुष्यान् समुद्रो वाश्वस्य योनिः समुद्रो बन्धुः यत्तर्षवोऽन्नमासो यजते अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति एतदनुगृहस्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य पदे पदे जुह्वति यो वाश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति असौ वा आदित्यो स्वः
साहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यरग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तने जुह्वति यदेकादशेऽहं प्रवर्ज्यते इन्द्रो भूत्वा तिष्ठुभमेति यद्वादशेऽहं प्रवर्ज्यते सोमो भूत्वा शुच्यामेति यत्परस्तादुपसतां प्रवर्ज्यते तस्मादितः परागमोल्लोकागस्तपन्नेति यदुपरिष्टादुपसतां प्रवर्ज्यते तस्मादमुतोर्वागिमाल्लोकागस्तपन्नेति य एवं वेद ऐवतपति तस्यैवात्मापदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन पञ्चपञ्चाशदस्त्रिवृतः संवत्सराः पञ्चपञ्चाशदः पञ्चदशाः पञ्चपञ्चाशदः सप्तदशाः पञ्चपञ्चाशद एकविंशाः विश्वसृजागो सहस्रसंवत्सरम् एतेन वै विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त यद्विश्वमसृजन्त अस्मात् विश्वसृजः विश्वमेनाननु प्रजायते ब्रह्मणः सायुज्य कौसलोकतायन्ति एतासामेव देवतानागो सायुज्यो साक्षिरागं समानलोकतायन्ति एतदुभयन्ति एतेन त्राहुः येभ्यस्तेन त्राहुः ॐ तस्यैवं विदुषा यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धावत्ति शरीरमिध्वमुरो वेदल्लोमानि परिहर्वेदशिखा हृदयं यो भक्काम आज्यं मञ्जुः पशुस्तवाग्निस्वमयिता दक्षिणा वाग्घोता प्राणवद्गाता चक्षुराध्वर्यर्मणा ब्रह्मा श्रोत्रमग्निद्यावध्रियते सा दीक्षाय तस्मात् तस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसरो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते तसप्रवर्गायन्मुखं तदाहवनीयस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधो यत्सायं प्रातर्मध्यं दिनच्चदानि सवनानि ये होरात्रे दीदृशपूर्णमासो ये चतुर्मास्यानि यर्तवस्ते पशुबन्धाये संवत्सराच्च परिवत्सरा शरहर्गणा सर्ववेद संमायेतत्सत्रयन्मरणं तदवृथेतत्पैतरामर्यग्निहोत्रगं सत्रय्य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छत्य भुजो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गच्छत्य सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानो ब्राह्मणो विद्वानभिजयते ब्रह्मणा महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणा महिमानमित्युपनिषत् देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायिके श्रीवेङ्कटेशमहिषितकल्पवल्लि लोकैकैश्वरि लोकनाथदगिते भद्रपीठे ऋषन्ने श्रीपद्मावती देवी सामवेदप्रिये सामवेदमवधारय ॐ येषस्य धारया सुधा क्रीडन्
पश्यन्दमुन्नयामि अहोरात्राणि 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 तस्मिन् वयमीयमानयीयामहे तस्मिन् वयमीयमानयीयामहे तस्मिन् वयमीयमानयीयामहे ईयामहे 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 आवा ये धामन्त्र्यक्षरे प्रिये धामन्त्र्यक्षरे प्रिये धामन्त्र्यक्षरे द्वयामे समादास्पराय ब्रह्मा प्रजापतिवाच प्रजापतिमुनयाचार्यकुलात् वेदमदे तेदाविदाङ्गुरोर्कर्मादिक कुटुम्बे सजौ शेषे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकानुदात्त सर्वेन्द्रिया सम्पतिष्ठा सकलवैवं ब्रह्मलोक न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ओमाप्यायन्तु महाङ्गानि वाक्कानि चक्षुष्य अतोलवन्द्यानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मावृतं मां निराकुर्यात् मामा ब्रह्म निराकरणमत्वनिवारणमे यदात्मे निरते उपनिषत्त धर्म ते मयि सन्तु देवदेवोत्तमे देवता सार्वभौमे श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायिके अंजनगिरिनाथ रंजने करुणावरुणालये पद्मावती देवी अथर्ववेद प्रिये अथर्ववेदमवधारय सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सञ्जातमेवाघ्र्याम् अनोव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मानाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् मा भ्राता भ्रातारन्विक्षन्मा स्वसारमुतस्वसा संयञ्च सव्राता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ये
तेन देवानभियन्ति नो च विद्विषते मिथः तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः शान्ताद्यौ शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वा अन्तरिक्षम् शान्ता ऊदन्वतीरापः शान्ता नः सन्तोषाधीः शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तन्नो अस्तु कृताकृतम् शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौ शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः 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 शान्तिभिः ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमायामोऽहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः स्तुता मया माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रवीणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्राजत ब्रह्मलोकम् ब्रह्मवर्गं भगवत्स्वरूपम् अकारौकारमकार इति अनेकधा समभवत्तदेकतोमिति यमुत्वामुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति प्रतिदम्बरं पुण्डरीकं विज्ञानघन तस्मात् प्रतिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन सर्वभूतस्थमेकं नारायण कारणरूपमकारपरब्रह्म एतद् सर्वशिरो यो धीयते सादरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपादकौ उपपादका प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद विद्युपनिषत् आभिर्गीर्भिरेदतो नमो नमः जय हरिवो वर्धमानः यदा गोत्रेभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अधते स्यामे ब्रह्म प्रावादिष्पदन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मोपदेष्टे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रभगायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्